Let me start with Bhunesh first, because I could see you right across me. Yeah. Bhunesh, there are a lot of young people here, and social media is such a huge part of our lives, right? And I see so many young people today wanting to become social media influencers. Can you give a trick or two to keep in mind, or maybe some pointers to keep in mind as a social media influencer, as a career? And what are maybe two do's and two don'ts? Sure. Am I audible? Yeah. So, everyone wants a 1 million subscriber on Instagram. Like, dislike. Dislike तो होते नहीं आजकल. It is banned by the YouTube. Yeah. So, like, whenever you post anything, no, you always see कितने like आए, 10 आए, 15 आए. Oh, पिछली बार तो 50 आए थे. So, disheartened whenever you post something and you are not getting a like or this. So, yeah, first of all, you need to differentiate कि when you are using a social media, I mean, I'm not naming a platform. Maybe Instagram, Facebook, Tinder is not in the country, I guess. Tinder है, और भी है क्या? TikTok है. हाँ, I know. Paresh doesn't know about Tinder. I don't know. Yeah. He has no idea. There are a lot of social media. I mean, yeah. So yeah, TikTok was the name of it actually. So yeah, whatever the name of the social media is, platform is, but you have to differentiate कि वो entertainment, whatever you are on an entertainment side or you are want to make a career. Okay, अगर आप entertainment के लिए काम में ले रहे हो तो you can use it for hours. 2 घंटे पता भी नहीं लगेंगे कब निकल जाएंगे, जो eventually होता भी है हमारे साथ में. We are धीरे धीरे हम लोग दुनिया से दूर जाते जा रहे हैं और we are more on online. तो ये तो हमें थोड़ा सा डिकोड करना है कि we should be offline more. ओके, लोगों से बात करना इज बेटर वे कंपैरेटिवली कि सोशल मीडिया पे 2 घंटे बिताना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफरेंशिएट कि आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो या फिर यू रियली वांट टू मेक ए करियर बनाना चाहते हो. अगर आप यू वांट टू रियली वांट टू बिकम ए इन्फ्लुएंसर, तो देखो कि आप ऐसा कौन सा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो दैट विल सॉल्व ए प्रॉब्लम. अगेन, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं सोल्यूशन होगा, जहाँ सोल्यूशन होगा वहीं पे लोग आपको ढूंढेंगे. अगर आप उनकी नीड को पूरा कर रहे हो तो दे विल सब्सक्राइब टू यू, दे विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर अनदर वीडियो. And if you are saying whatever you want to give a product to them, they will buy it. तो always try कि आप कौन सा ऐसा content उनको दे सकते हो जो आपको पता हो, आपको खुद को भी पता होना जरूरी है. Which is also your forte, like which is also your strength. Yeah, that is your strength actually. Yeah. Maybe there is one guy from the कोई पीछे से जो हो सकता है फुटबॉल के ट्रिक्स बहुत अच्छे जानता हो. तो if you make a video जहाँ पे फुटबॉल के आपने 4 ट्रिक बता दी, you will get viral. I mean, क्योंकि इतने लोग नहीं है इंडिया में या फिर हमारे जयपुर में जिनको इतना कुछ आता होगा कि कैसे आप कुछ ट्रिक्स कर सकते हो. ओके, अगर आप कोई मैजिक की कुछ अगर ट्रिक डाल दोगे तो डेफिनेटली पीपल विल कम टू यू एंड लुक फॉरवर्ड. और वहीं पर ही किसी और ने ब्रेकिंग द मैजिशियन कोड नाम से कुछ और बना दिया, जो कि बना हुआ भी है यूएस में बहुत पहले, उसने उसको डिकोड कर दिया, तो उसके पास में भी उतने सब्सक्राइबर और व्यूज आ जाएंगे. तो जस्ट ए स्मार्ट वर्क कि लोग क्या देखना चाहते हैं और आपकी क्या स्ट्रेंथ है जो आपको पसंद है. अगर आई एम गुड इन क्रिकेट और मैं किसी दूसरे स्पोर्ट्स के डाल रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे अंदर ही नहीं है ना वो चीज. आई विल नॉट मेक इट. And also, do you think, I'm sorry, I'm interrupting you because I want to make it more interactive. Do you also think that consistency of posting online is very important? Because I see you seemingly impossibly post a video every morning. What time? 7 in the morning. 7 a.m. in the morning every day. This is crazy. I mean, how every day without fail he is posting a video on YouTube 7 in the morning. What do you do on Saturday night, man? So Saturday night, Sunday is my holiday actually. Okay, that's good. Yeah, so doesn't matter I'm in the which part of the world. मैं चाहे न्यूजीलैंड हूँ, चाहे मैं यूएस हूँ, या मैं किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में हूँ, अगर 7 in the morning मेरी क्लास जानी है तो I'll adjust my timing according to that zone and put that video. So it is very important to be consistent. ओके, अगर आप कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली फर्स्ट डे में आपके कभी सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, कभी व्यूज नहीं आएंगे, कभी पीपल विल नॉट अप्रिशिएट यू. अगर आप उसी काम को करते चले जाओगे फॉर 1 quarter, 2 quarter, 3 quarter, देन पीपल विल स्टार्ट टू लुक फॉरवर्ड टू यू. उनकी एक आप आदत बन जाते हो आपकी वीडियोस देखना, क्योंकि उनको एक रेलिवेंट कंटेंट है जो कि मिल रहा है. ओके, यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो कि बहुत वीडियोस देखते होंगे बिकॉज यूट्यूब हैज ए एल्गोरिथम. अगर आपने एक बार मेरा वीडियो देख लिया तो नेक्स्ट डे आपको वापस से साइड में रिकमेंडेशन में मेरा वीडियो दिखाएगा. ओके, सो आप वापस से उस पर जाके क्लिक करोगे. द
एक स्टैट्स है कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखने आते हो और आप 4 देख के जाते हो. दिस इज द बेसिक फैक्ट. बिकॉज यूट्यूब हैज सो वर्क्स ऑन वेरी गुड एआई. एल्गोरिथम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं कि आप एक पे क्लिक करोगे उसी का रिकमेंडेशन, तो आपकी चॉइस बन जाती है वो सारे वीडियोस देखना. अगर आपने एक वीडियो सर्च कर लिया तो बस फिर वो आपको इतना क्लास 24 देख के जाओगे. Super. Yeah, Thank you, Bunesh. Thank you so much for that answer. Let's have a round of applause for Bunesh. I would like to go to Paresh now because you are sitting next to me. So I don't have a reason for both of you. I could only think of these two. Paresh, you have taught so many students, and you are into education since how many years now? 10 years. 10 years now. What is the one thing, the one challenge that you have seen that is abundant amongst most of your students, whoever you've come across? It's a pretty specific question, but I'm sure after teaching so many kids, mentoring so many kids, you must have seen something that is very common in everyone. Tell us about that. So I think सबका एक्सपेक्टेशन पता है पढ़ाई से क्या है कि हम स्कूल जाएंगे और बहुत सारे मजे करेंगे और पढ़ाई मजेदार होनी चाहिए. एंड बाय कैरेक्टर पढ़ाई इज नॉट मजेदार. पढ़ाई इज बोरिंग एंड देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ बोर्डम. बिलीव मी, यहाँ पे जितने लोग बैठे, आई एम अ टॉपर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ टॉपर इन एवरी ब्लडी एग्जाम दैट आई हैव डन, आई कैन टेल यू आई हेटेड स्टडिंग. सो ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग कोई आप मूवी शो नहीं देखने जा रहे हो. सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और हो क्या गया विथ social media influencers and a lot of other people around, people are told stories and they're told stories in a very different way which is not true. So you are told, because क्या होता है ना, हमेशा story successful लोग सुनाते हैं, failure नहीं सुनाते. Right? We are very happy that Bunesh is today saying this, but how many people want to become Amitabh Bachchan, but only one Amitabh Bachchan comes out of the whole industry. So he would say, oh, this happened, so it's okay to go ahead and do it like that. But imagine all the other people who are sitting on a VT station in Bombay and not cracking that entire thing. So the problem is that बच्चों को ये समझ ही नहीं आता. उनको लगता है हम कम मेहनत में बहुत कुछ कर लेंगे. It is supposed to be hard, right? हाँ, it is supposed to be hard. It's not only पढ़ाई. So my answer is, क्या जो भी स्टार्टअप इन्होंने किया, have they not had a back-breaking work? It is not easy. I can tell you, मतलब I mean, इन दोनों को तो बहुत पर्सनली जानता हूँ. Look at how Mayank works in his bakery. वहाँ पे गर्मी होती है भयंकर. He's sweating. And today he might, sound all good and nice and everything, but look, in his kitchen he's messed up completely. पूरी हालत खराब होती है. This guy is working in his factory, getting his hands dirty, making laddus around, to be honest. But वो करना पड़ता है, and it is probably the dirtiest job you can think about. There are times when I would go to my office and sweep it by myself because उस दिन maid नहीं आई. And करना पड़ता है because मेरा तो client आने वाला है, right? So I can't help it out. Now you have to imagine, this may sound as dirty as possible, but you have to get your hands dirty. You have to understand that behind that entire success that is glorified, there's this whole lot of back-breaking hard work which is boring, which will remain boring. It is difficult, and only when you have done this that you can sit here and talk about all that now. There is no magic wand in the real life. There is no magic wand. किसी के पास नहीं है. आज तक तो इजाद हुई नहीं, sir. Absolutely Right, fantastic. That's a fantastic suggestion. So आप hard work करते जाओ, and you never know when this will strike. Trust me, failures are great, and you should enjoy failures. I'll tell you one simple example from my life. Absolutely. मेरे को जब भी कोई award या achievement मिलता है ना, मैं कभी भी जा करके उसको celebrate नहीं करता. और जब भी failure होता है, so जब भी I think, suppose I am down, I am sad, something goes wrong, something goes off, I will actually lock myself in a room. I will cry for 30 minutes, 1 hour, come out of the room and say, आज party होगी. Because I learned something today. This is more important. इस पे to ताली ज़्यादा enjoy बननी that, चाहिए. right? You should have more louder applause on this. आपकी सक्सेस तो आती रहेगी यार. सक्सेस हमेशा आप काम करोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सक्सेस कभी तो मतलब बिना मतलब की सक्सेस मिल जाती है. अब तुमने हमको जबरदस्ती यहाँ बुला लिया. आई डोंट इवन सी वर्दी ऑफ being here. We are like another set of people sitting there. यार, we are just Humility. Someone very great said, humility is a very strange character. The moment you realize you have it, you lose it. So he has not realized that he has it still. So he's still very humble. Paresh, to be very frank, has been such a huge support for me in organizing this event, and not just this event, events in the past.
and I mean I can call him without even a second thought and ask him whatever. तभी ये सबको बंदूक पे गन पॉइंट पे रख के बोल देते हैं कि आज ये करना है या आज यहाँ मिलना है. I mean this let's have a huge applause for Paresh because he has been a huge support for this community, St. Edmunds. I would not just call it a school, it is a community. Absolutely. No, I'm always there and at your service, sir. Thank you, Paresh. Okay, I would like to move on to you, Mayank. What has so something interesting for the students? Tell us the weirdest experience you've had back in the backstage. I would call in the kitchen, and something that has maybe a horrible incident, some accident, or कुछ उल्टा सीधा कभी हुआ हो on a lighter note. सो बैक स्टेज एंड फ्रंट स्टेज दोनों इंसिडेंट है मेरे पास. मेरे यहाँ से कोई चीज़ केक लेके गया एंड वी हैड अ चीज़ केक एट पेरिस एंड ये वो. मैं कहा ठीक है प्लीज़ बाय इट. वो आने के बाद कहते भैया ये तो खट्टा है, इसमें तो खमीर नहीं है. मैं कहा व्हाट द खमीर इज नाउ. बोले वो जो ब्रेड लगती है वो. मैं कहा चीज़ केक में ब्रेड कब से लगने लग गई. तो बेकरी हो या फिर कुछ, अब आप सोचिए कस्टमर इज आवर प्रायोरिटी. उसने वो केक लिया और मेरे स्टाफ के मुंह पे मार दिया. कस्टमर इज, कहते हैं ना कि ग्राहक देवता होता है. Customer is king. कस्टमर इज किंग. बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के साथ ऐसा किया जा रहा है ना, तो वो कस्टमर किंग नहीं है. सबको अपनी मर्यादाएं पता होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके बाद बस और कुछ नहीं हुआ. मैं ये इंसिडेंट वर्ल्टेड पार्क का है और वर्ल्टेड पार्क की अथॉरिटी आके उनको बेसमेंट में ले गए. उसके बाद उनका कुछ जो हुआ होगा वो अच्छे से हुआ होगा. Okay. बैक स्टेज में मदर्स डे वाले दिन मेरे यहाँ पे इवेंट था विच पब्लिश्ड अच्छे खासे न्यूज़ में, क्योंकि हम लोगों ने एक टैलेंट हंट शो करवाया था फॉर अ मदर्स. सब कुछ हुआ, इवेंट हुआ, हाई टी, खाना वाना. अचानक से स्टाफ भाग गया और मैं ऐसे बिल्कुल टिप टॉप होके ऊपर पहना यूटी Staff ran away. Staff भाग गया. Okay, wow. क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे धोने के लिए. मैंने यूटी वाला वो गमछा पहना और बर्तन साफ करने. वो बाहर मेरी मीटिंग है. बोलो सर एक अनदर मीटिंग में बिजी है तो अभी आ रहे हैं. Meeting with the utensils. मीटिंग विद द यूटेंसिल्स. सो हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, हमें सबसे पहले अगर कोई भी मेरे यहाँ पे मैनेजर के लिए भी आता है तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ पोछा लगा लोगे, क्योंकि अर्जेंसी में तो भाई करना ही पड़ेगा. No, what I want to make a point here that there is one huge difference between our country and the countries in the West, and that is dignity of labor. So as Paresh said in the beginning that being a sweeper is not a bad job, but sweeper बनने के लिए MBA क्यों करना है? That's a questionable thing. But there is a concept called dignity of labor. No matter what job you do, when you go in the West, even the janitor of an organization is equivalent to the CEO of that organization. Absolutely. And this is something that lacks in India, and that is why so many people are running away from these jobs, and then there is a scarcity and you look down upon them, and there are social issues and communal issues that happen. So I would congratulate you that you did not think like that. कि मेरा काम नहीं है. I wanna say one more thing. कितने लोग ये मानते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है? मानते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है? मुझसे पूछो, मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कोई काम ही नहीं करना चाहता. I have a 75 people staff. 75 people staff. हर महीने 20 भाग जाते हैं. सर मज़ा नहीं आ रहा है. अब मैं नाच के तो नहीं दिखा सकता उसको उसके मज़े के लिए. I told you. एंड द यूटी के लिए, मतलब अगर हम लोग बोले कि जो स्टीवर्ड तो अगर यूटी से ऊपर आ गए, यूटी का स्टाफ के लिए आप आए हो इंटरव्यू देने के लिए, क्या काम किया है? कुछ नहीं किया. क्यों करना है काम? पैसे Could you explain what UT is? यूटिलिटी डिपार्टमेंट. Utility department. जो आपके डिश वॉश करता है, आपके मोब लगाता है. अगेन द स्वीपर. तो हम लोग, हमारी इंडस्ट्री में स्वीपर्स नहीं होता, हमारी यूटिलिटी वाला होता है, बिकॉज ऑफ वो भी एक पार्ट होता है हायरार्की का. वो कहता है सर मैं यूटी के लिए आया तो हूँ, पर मैं ना तो सफाई करूँगा और ना मैं बर्तन साफ करूँगा. मैं कहा आप क्या करोगे? मैं काउंटर पे खड़ा रहूँगा. मैं कहा उसके लिए तो मेरा ही 70 किलो का वजन बहुत है वहाँ पर खड़े होने के लिए. सिंपल. तो हम लोग काम नहीं करना चाहते. आज भी मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि अगर मैं किसी फंक्शन में हूँ
तो मैं फटाफट से स्टोर जाता हूँ। मैंने परसों ही पूरे मालवीय नियर बाय स्टोर है मेरा मालवीय नगर में कैलगरी पे, मैंने उसकी पूरी की झाड़ू लगाई है। आई एम श्योर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ड्रॉप बाय। किसी को डिस्काउंट देना हो तो सेंट एडमंड्स के आई कार्ड के नाम पे दे देना। डेफिनेटली। सो प्रमोशनल वो प्रमोशनल एड नाउ कि जो भी इस एडमंड्स के कार्ड के साथ आ गया, वी विल गिव यू 20% डिस्काउंट। सुपर, वेल लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। या But I want to say something here, okay? Or I mean, Okay, let us put our brains away from the pastries and I bring know. it back to the show. The discounts are always amazing. Yeah, and yeah, trust me. So I'll tell you what my experience with Mayank has been. I mean, of course, at a very different level, and I have tasted his multiple pastries and cakes, and he made one specially for me. So that's such a big thank you to you. But I'll tell you something. While we're talking about this, पता है हमारी एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में होता है, हर दिन हर समय। हम हमारी मेड के साथ बैठ के चाय नहीं पीने को कतराते हैं। वी कैन नॉट हैव फूड विद आवर मेड्स। वी फील उनकी चेयर अलग होती है, उनका कप अलग होता है, उनका खाने का मटेरियल अलग होता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड इट। व्हेन आई वाज इन लंदन, बिलीव मी, I used to have a cleaner who used to come to my house. Of course, they were all very expensive, but irrespective. That also means you were very rich. Whatever. So वो आती थी और वो जब तक हमारे वॉशरूम साफ करती थी तब तक हम उसके लिए चाय बनाते थे। और हम जब वो फिनिश करती थी तब हम उसके साथ बैठ के टेबल पे बैठ के चाय पीते थे। And that's exactly what I learned by staying outside. कि जिंदगी में कोई कचरे वाला नहीं होता, कचरे वाले हम होते हैं, वो सफाई वाले होते हैं। True. That's So absolutely we have correct. to appreciate कि वो इंसान हमारे लिए सर्विस कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आप ये सोचो कि आपके कॉलेज स्कूल के बाईजीज, भैयाजीज, पियंस, whoever is taking care of you, क्या आप उनको सुबह उठ करके हेलो बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, थैंक यू भैया बोलते हो, थैंक यू भाईजी बोलते हो? एंड आई थिंक दीज आर सच स्मॉल इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो तुम्हें जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। ट्रस्ट मी, दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न इन दिस लाइफ। सो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। Please. I will take a 1 or 2 Go ahead, minute. go ahead. We're here to talk. So there's a one girl जो अचानक से मेरे पास आई। उसने मुझसे बोला कि सर मुझे है ना काम करना है। मैं कहा बेटा आपको क्या आता है? आई थिंक वो किसी गांव से ही थी आसपास के। बोला सर मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं कहा कितना सीखने की इच्छा है ये बताओ। ये बात बता रहा हूँ मैं चॉकलेट रूम 2014 की। तो उसने कहा सर आप जो कहोगे ना मैं कर लूँगी। मेरे ख्याल से आई एम अ बैड टीचर बाय द वे। अगर मैं किचन में हूँ तो आई एम हाफ बोंग हाफ मारवाड़ी। मेरे दोनों हाथ चलते हैं, मैं दोनों बर्नर पे चढ़ाता हूँ फ्राई पैन और दोनों पे बनाता हूँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट भी चलता है राइट भी चलता है। और मेरे आसपास जो भी होता है तो उसके बटर नाइफ, क्योंकि जब स्पीड में चाहिए होता है कुछ कि इधर लाओ तो आप अगर आप ढीले हैं। उस लड़की ने आई गेस, कहते हैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, बट इक्वालिटी का जमाना है ना, जब डांटना होता है तो कान खींचने सबके पड़ते हैं। वो सबसे ज़्यादा मुझसे डांट खाई है, सबसे ज़्यादा मार खाई है। आज वो दुबई में मैनेजर है एक, और वो घर से इसलिए भाग के आई थी क्योंकि उसके घर वाले उसकी 18 में शादी करवाए थे अननेसेसरी किसी 35 साल के इंसान के साथ। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आज वो दुबई में मैनेजर। You born a student, you die a student. You've got to be hungry. या With that, I would like to go to Viral Tiwari. I will not call him Viral Tiwari. You जब से Shark Tank पे गया है, he's a viral guy. Hey, all viral. I will ask you a common, obvious question because so many of you here do not know him personally. Tell us, how was your experience going there? It's the most cliched question somebody would ask you. अब तक तो याद भी हो गया होगा, I know. But we still want to know, what was your experience going there? How was the experience with the judges? And who did you find the coolest? याद तो देखो ऐसा हो गया है, वो मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। आई हैव द एंटायर स्क्रिप्ट प्रिपेयर फॉर यू। तो वी अप्लाइड फॉर इट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। And this was Shark Tank season 1. Okay. Yes. So season 1, nobody in the majority audience knew about what Shark Tank was. कॉलेज में हो आप या यू हैव गुड इंटरनेट एक्सेस, यू नो व्हाट शार्क टैंक यूएसएस, ड्रैगन्स डेन वगैरह सब देखा। सो वी वर नॉट अवेयर उस समय। वी वर जस्ट 6 months old in terms of company and we started with this. तो टीवी पर रैंडम ऐड आया,
शार्क टैंक इंडिया में ऐसे. And my father is, he comes from a business background, so he's very enthusiastic with these things. उनके लिए startup चालू किया है, घर में किया है, मेरी वाइफ ने और मेरे बेटे ने किया है, तो उनके बस दिमाग में ना वो जैसे Google alerts होते हैं ना, he has a startup सुना और दोनों को बुला के ले आओ, तो he has this alert. तो first time ad देखा, within 45 minutes I was done with my application. मैंने कहा देखते हैं क्या होगा. I have been very unlucky in terms of ये lottery type situations, तो मैंने कहा ये पक्का हो तो रहा है नहीं, but ठीक है भर देते हैं. Eventually we started getting calls. First round clear हो गया, ठीक है. Second round clear हो गया. वो होता है ना ignorance is bliss. आप जितना anticipate करोगे चीज़ को वो नहीं मिलेगी. We were very candid about casual. What happens in these rounds? Do they take your interviews? So first round is the written round. Second round में you have to do a video Okay. of they want to see your physical appeal on. Okay, this is cameras. important for you guys if you want to apply in the future, right? And then third round में they call you up. तो Okay. दिल्ली में ITC मौर्या में हमारा audition था. And then there were like 500 different companies. और वो जितना पैसा हमने टोटल स्टार्टअप में खर्च नहीं किया था ना उतना तो वो लोग वहाँ पे सामान लेके आए थे दिखाने के लिए. एंड वी हैड टू लड्डू का बॉक्सेस विद अस. Wow. यार गया फ्री का खाना है वो ढंग से खा के चलना है बाकी तो गया हाथ से. तो वो हो गया. एंड कैंडली माई मदर इज अ चार्मर इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल. सो शी हैड द 3 judges they had over there, वो ADs होते हैं वहाँ पे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स. शी charmed them. तो उन लोगों ने जैसे जैसे नाउ वी हैड those 3 were fighting for us in the next few rounds. तो हमारे पास रोज कॉल आता था रैंडमली. हमारी वो बुझती हुई कैंडल को ज़रा सी फिराक दिखा दिया जाता था कि आप ये कैसे करते हो वो कैसे करते हो. एंड वी वर जस्ट गिविंग आउट आंसर्स. देन सडनली दिवाली के दिन वी हैड अ कॉल एंड that you are selected in the next 3 days you have to be in Mumbai, so and so are your travel accommodation details. Super. And we went there. वहाँ जाके पता लगा not just in the segment that we were called in, पूरे entirety of Shark Tank में we were the smallest company to get selected in terms of revenue and in terms of experience also. And we were the only startup from Rajasthan to get featured in season 1. Also, I would like to mention that Viral is also Paresh's mentee here. Proud so mentee. Proudly. And so yeah, another feather on the badge hat for you. This is my hat trick of Shark. Hat trick of Shark Tanks. Okay, sorry, please continue. So yeah, and then second season में you have a lot of insights. आपके prejudices बन जाते हैं with particular sharks कि ये ऐसा है ये ऐसा है. And you know their knacks, their personality. First season में even the sharks were not that famous, so we did not have any like benchmark to see what will happen. Owing to the nature of Indian reality shows, we were very expectant of drama inside the tank. But वो निकला एकदम उल्टा, एकदम pitch जैसा pitch. They had all the documentations and everything, and financials दिखाओ, projections दिखाओ, ये सारी चीज़ें. So, but I think the major learning that I had was that we should not have these innovations, क्योंकि हम टारगेट करके गए थे कि हम मामा अर्थ में गजल अलग को और ये नमिता को टारगेट करेंगे, because नमिता has the largest network of gynecologist, क्योंकि She's from Pharma, right? Pharma. Yeah. And गजल because she was pregnant at that time. तो ये सोच के गए थे. एंड वी वर वेरी श्योर दैट विनीता एंड पीयूष विल बी द मोस्ट अपोजिंग पीपल फॉर अस. हुआ एकदम उल्टा. Okay. मतलब पीयूष वॉज सो पीयूष एंड विनीता बोथ वर सो सपोर्टिव ऑफ व्हाट वी वर डूइंग. तो आधे में हमारा तो गेम ही खराब हो गया कि मैंने कहा जिसके अगेंस्ट खेलने आए थे वो तो हमारी टीम में है और जिसके साथ खेलने आए थे वो तो उल्टा पड़ रहा है. तो आई थिंक वी वर ऑल्सो वेरी naive and very immature for that time. But ठीक है. शार्क टैंक में मुझे ऐसा लगता है ना कि शार्क टैंक से ज़्यादा ना शार्क टैंक का आफ्टर इफेक्ट्स इज मच मोर एंजॉयबल. True. तो वो जो मिलता है ना आपको मज़ा, जब आप रात को 9 बजे टीवी पे देख के हाँ टीवी पे आ गया मैं सो जाते हो और सुबह 4 बजे से आपके फ़ोन बजने चालू होते हैं और वो अगले Fantastic. 4 दिन तक लगातार No, we should be very proud that somebody from our city has gone on there and is doing such a fantastic job for what you're doing. And I also believe that as something very contrary to everyone's belief, you're a man in a woman's world.
doing such an important job for the females. So fantastic round of applause for you, and congratulations for what you've achieved. Gunesh, I want to come to you with a question. You've gone to you've sold your company out and merged with other companies, much bigger companies. How is the corporate funding world like? Is it cutthroat? How it is like to have deals done with them? Because Shark Tank is, I believe it's a little milder compared to what goes behind the scenes in the real world. Share an experience with us. Investment word is hyped, I guess, somewhere, because first of all, you don't need an investment if you are bootstrapping somewhere. First of all, you need So to bootstrap का मतलब एक बार आप बताओ. bootstrap का मतलब है कि आपने अपने नियर बाय आपके पास कोई सेविंग है. लेट से आपने 1000 रुपये लगा के कोई आपने काम करना चालू किया जहाँ से आपने 1200 रुपये अर्न करे. आपने 200 रुपये प्रॉफिट कमाया, नहीं भी कमाया तो आपने लेट से 500 रुपये आपने कमाए, 500 रुपये आपको लॉस हो गया. आपको पता है यू हैव ए बिलीव कि ये प्रोडक्ट काम करेगा इन द मार्केट. आप अपने दोस्तों से, आपने नियर बाय डियर वन जो भी आपके फैमिली फ्रेंड जो है, क्योंकि दे आर द फर्स्ट वन हु विल ट्रस्ट यू. ओके, बिकॉज दे नो यू, दे नो योर पैशन. उनको पता है कि आप दिन रात काम कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, सब कुछ छोड़ा हुआ है आपने सब कुछ जो भी मजे होते हैं, रात को घूमना, सब कुछ आपने अवॉइड किया हुआ है बिकॉज यू आर बिल्डिंग समथिंग. तो दे हैव ए ट्रस्ट. कोई ना कोई 50 लोगों के पास में जाओगे तो 5 लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे. दे विल गिव सम मनी टू यू. So basically friends and family round हो गया. आपके हाँ, friends and family ने आपको वो- सपोर्ट किया या खुद की जेब से पैसा लगाया. That is Yes, sir. bootstrapping. Yes, And sir. then you go forward. What do you do then you go forward. then you make your product एक relevant in the market. जब आपको लगता है कि हाँ, अब मेरा प्रोडक्ट जो है वो relevant है, I can compete with the top 20, 50 और 100 companies in the country. तब you are trying to find some angel investors और उसके बाद में VC funds. VC fund बहुत बाद में आता है, पहले आप try to find some angel investors कि जिसने 2 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए 10 लोगों ने मिलकर आपकी कंपनी में लगाए. There are some lot of companies. तो एंजल इन्वेस्टमेंट तक भी ठीक है बिकॉज काफी सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपका प्रोडक्ट डिस्टॉर्ट होगा या नहीं होगा. लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वीसी राउंड पे जाते हो, जब आप थोड़े बड़ी कंपनी बन जाते हो, millions of dollars प्री सीरीज ए बी सी बाद में So जाते VC हो. is VC इज वेंचर कैपिटलिस्ट. तो कैपिटलिस्ट वर्ड सुन के because there are 8th and 12th standard students, so we need सॉरी to. सो सबसे पहले डियर वन होते हैं. सबसे पहले आपका पैसा लगता है जो आपके पास सेविंग है, जो आपने थोड़ा बहुत कहीं से बचाया होता है, लिया होता है फिर ना. friends and family हो गया. फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया. उसके And बाद fools. उसके बाद आपके एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो एंजल बन के आते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपकी कंपनी थोड़ा ग्रो करने के अंदर. वो कितने भी लोग हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आते हैं. आप उनको पिच करते हो, वो आपके जानकार नहीं होते, वो आप हो भी सकते हैं लेकिन नॉर्मली वो आपके कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उनको आपका आइडिया पसंद आता है. तो आपको 50 लोगों को पिच करना पड़ेगा, तब जाके 20 लोग आपको अवॉइड करके चल जाएंगे, 10 लोग आपको गाली देके भी चल जाएंगे, बकवास आइडिया एकदम, नो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, मे बी 2 लोग होंगे. इसलिए कभी भी इफ यू आर इन एंटरप्रेन्योरशिप, कभी भी इस चीज से परेशान मत हो कि लोग आपको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. आप जितनी भी जगह जाओगे आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा. देयर विल बी ए पोजीशन, जब आप करते करते कहीं पे पहुंचोगे देन यू विल गेट सम रिस्पेक्ट, और उसके बाद में भी बहुत जगह पे. तो ये सब चीज़ें होती है ना कि आई एम वेरी प्राउड, मैं हमेशा, मैं तो ये नहीं करूँगा, तो शर्तें नहीं होती कभी भी. ओके, यू हैव टू गो टू एवरीवन, सबसे बात करो, पिच करो, बात करो. कोई गलत बताएगा, कोई सही बताएगा. यू नीड टू टेक द आइडियाज, ओके, एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट इट. तो आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लिया, उसके बाद में देन यू गो टू सम बिग कंपनीज जिनके पास में मिलियन या बिलियंस का फंड होता है. देयर आर लॉट ऑफ वीसी फंड्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. इंडिया में इतने नहीं है, यूएस में बहुत ज़्यादा है, बाकी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है. और दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग. अगर आप कोई प्रोडक्ट का सोल्यूशन दे रहे हो तो ओके. 5 साल पहले तक, 10 साल पहले तक इंडियन इकोसिस्टम में चल जाता था कि आप अमेजोन का फ्लिपकार्ट बना दो, उबर का ओला बना दो, है ना, एयरबीएनबी का यहाँ पे ओयो टाइप या और भी सिमिलर प्रोडक्ट्स है जो कि बना दो. बट नाउ द सिस्टम इज चेंज. ओके, क्योंकि अब आप नेटफ्लिक्स का यहाँ पे हॉटस्टार इज अक्वायर्ड बाय डिज्नी, दैट्स व्हाई हॉटस्टार ट्राई टू कॉपी डिज्नी एंड नेटफ्लिक्स. सो वी ऑलवेज नीड टू गो टू द टॉप कंपनीज. हमें देखना है कि यार हम लोग कैसे माइक्रोसॉफ्ट बना सकते हैं, एप्पल बना सकते हैं, नाइकी बना सकते हैं. ओके, हमें उस लेवल पे सोचना है बिकॉज आज इंडियन इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है, अमेजोन $2 ट्रिलियन की है. मतलब उस कंपनी की अगर मैं वैल्यू, तो मतलब बहुत बहुत बड़ी कंपनीज है. तो हमें ये देखना है कि ग्लोबल हम लोग सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं. स्टार्ट फ्रॉम द लोकल देन गो ग्लोबल.
तो वहां पे बहुत लोग आते हैं जो आपको बैक करना चाहते हैं, फंड देना चाहते हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू चूज कहां से पैसा लेना है, बिकॉज अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप कहीं से भी लोगे, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मेरे जो मैं सोचता हूं, जो मेरा विजन है, उसके बीच में कई इन्वेस्टर्स तो नहीं आ रहे, बिकॉज आई मेट विद लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। मैंने कम से कम इंडिया में पिछले 5 सालों में आई गेस 200 लोगों को तो पिच किया ही होगा आराम से, जिसमें से 50 तो बड़े बड़े वीसी फंड्स हैं जो दे नो मी वेरी वेल, दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी, लेकिन मैंने लिया भी नहीं उनसे, बहुत सारे लोगों से, बिकॉज मुझे मालूम था दे जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी, दैट्स इट। लेकिन कुछ वीसीज ऐसे भी होते हैं, उनको मालूम है कि दे केम इनटू योर कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 years, ओके 10 साल 20 साल के लिए, So long term vision, they want to create an impact with you, along with you. एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी टीम भी ऐसे बनानी होती है जो आपके विजन के साथ में अलाइन करें, और आपको अपने वीसीज, इन्वेस्टर्स, ये भी वो लोग होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जब आपके रेवेन्यू डाउन होगा या आप अच्छा नहीं कर पाओगे, तब फिर वो आपको कोशिश करेंगे कि सेल योर कंपनी, मर्ज इट समवेयर, बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, तो देन इट विल, तब आपके पास बहुत प्रेशर आता है और तब आप फिर इतना कर नहीं पाते हो। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप के साथ में यही होता है। आई कैन नेम यू 10, 20, 30 इंडियन स्टार्टअप जिनको वीसी का इतना प्रेशर आया कि उनको कंपनी छोड़ के जाना पड़ा, और ये वो आगे We're जा ही also नहीं पाए। seeing that Yeah. happening in Silicon Valley now with how many Exactly. of you know OpenAI? All time, Chat yeah. GPT तो सबको पता है, Chat GPT क्योंकि मालूम सब है, यूज हाँ। करते हो आजकल। Exactly, हाँ। तुम्हारे सबके आंसर्स पता चल जाते हैं चैट जीपीटी से आ रहे हैं, राइट? So it's happening with, it happened with Sam Altman for a moment, and then स्टीव जॉब्स के साथ हुआ, right? निकाल दिया था, बट अगेन कंपनी केम टू हिम कि यार आप जो बना सकते हो कोई नहीं बना सकता, बिकॉज यू हैव अ विजन। True. तो उस टाइम पे एप्पल ने स्टीव जॉब्स ने बोला था कि आई मेक ए प्रोडक्ट जो किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। सब लोग बोल रहे थे नहीं नहीं यार, सारे चार्जर से कनेक्ट होना चाहिए एप्पल। True. और आज वही उनका सबसे बड़ा यूएसपी है, बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग देयर मोबाइल फोन। वो इकोसिस्टम बन जाता है। True. अगर आपने लैपटॉप लिया तो आपको मोबाइल भी वो लेना पड़ेगा, चार्जर भी वो लेना पड़ेगा, ईयरफोन भी लेने पड़ेंगे, देन वॉच भी लेनी पड़ेगी। True. Super. Let's have a round of applause for that answer. Paresh, you had something to say. so I wanted to share something, you know, मतलब फंडिंग एक ओवरली स्टेटेड और ओवररेटेड वर्ड है और उसमें सीरियस इश्यूज हैं। एंड आई टेल यू सम स्टैटिस्टिक्स, रियल स्टैटिस्टिक्स। 2022 में इंडिया क्रॉस्ड 100 यूनिकॉर्न्स और हमने बहुत सेलिब्रेट किया। Unicorn would be? यूनिकॉर्न इज अ स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर जा चुका है, राइट? तो वैल्यूएशन है, पहली चीज तो नोशनल वैल्यूएशन है, वो रियल कैश नहीं है। वो रियल कैश उसका पार्ट ही है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका $1 बिलियन का वैल्यूएशन है और आपने केवल 10% मनी रेज किया है तो आपको 100 मिलियन ही मिला होगा। So cash coming into your business is not $1 billion, it is only 100. It's a fictional valuation. It's a fictional valuation. And 10% परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं। सो परसेंटेज को एक्स्ट्रापोलेट करके निकालते हैं। अब उसका फ्लिप साइड ये है कि व्हेन वी सेलिब्रेटेड 100 यूनिकॉर्न्स इन 2022, दिस ईयर वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर टू 76 and we are less than 100 startups again which are unicorns and the value is gone and startup founders को कुछ नहीं मिला है। So that is one thing which everybody has to understand कि जो नंबर बड़ा बड़ा दिखता है वो actually कैश नहीं आ रहा होता। That's number one. Number two is that please understand एक startup की जो जर्नी और जो पैसे के पीछे भागने वाली जर्नी है ना, this is not always fruitful. We are always talking about, and I meet so many youngsters like you guys who say मेरा idol is Elon Musk. And then when I look at Elon Musk's life, I also see his child who says I disown my father. Yeah, that's true. And that comes at a cost of becoming the richest man on earth. So you have to understand कि अगर आप जिंदगी में इतना अमीर बनने जा रहे हो तो उसके साथ बहुत सारी flip sides भी आएंगी. In fact, I personally know, I mean, you know, my dad is a good friends with Rajesh Adani, Gautam Adani, he's worked with them. Believe me, Gautam Adani has been abducted and kidnapped. And he has to have security guards to actually come out. So imagine that आपके अमीर होने के साथ flip sides भी बहुत सारे हैं और वो इतने अच्छे होते नहीं है जितना आपको दिखता है. So please understand that there is a flip side to funding, there is a flip side to money. ज़्यादा important है वो journey of enjoying and creating something of The your own. process is the prize. process and right? The process of creating and becoming a startup is the best thing. तो उसको enjoy करो यार. पैसा क्या करोगे? अच्छा, there is fantastic, you know, there is a nice YouTube video by Madhavan, R. Madhavan. वो बोलता है यार बॉम्बे के अंदर या किसी भी जने को ऐसे रहने के लिए आपको जयपुर में अगर बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चलानी है तो आप मर्क ले लोगे यार. उसके बाद क्या, राइट? सड़क तो वही है ना. जैम जब लगा होगा ना तो मर्सिडीज नहीं निकाली जाती. आई स्वेयर आई हेट ड्राइविंग माई लग्जरी कार एंड आई लिटरली ड्राइव अ स्मॉल इग्निस बिकॉज दैट्स मच इजियर टू नेविगेट इन दिस सिटी. तो आपको रहने के लिए ना छोटी गाड़ी ज्यादा अच्छी है.
Money is just what a will you do byproduct, with all yeah. that? Money is यार? just a byproduct of your work. So It there will is come no automatically with you. point. There is no point of unnecessarily running after money and saying मेरे इतने $1 million है, करोगे क्या? But let me also add on to that के because we want to make it conversational, right? के एक बार पैसा कमाने के बाद ये realization it होता है, is Which easy. is true. It is You know? easier. So once Because you you traveled your world, once and you entire world, maybe yeah, so everything. I think Shahrukh Khan famously said हाँ. कि पहले अमीर बन जाओ उसके बाद शायर बनना. Exactly, Right. exactly, So yeah, it is so very important. I also say that in the same time at the same time because what we are doing here is we are teaching them to understand what money is and how money works. True. Because no matter who you become in life, whether you're a chartered accountant, a doctor, a scientist, or XYZ, whatever you become, at the end of the day, you've got to know and learn how to manage money and grow money. And understanding money is the most basic important part of it. बल्कि मैं बोलता हूँ सॉरी Yeah, yeah, please, please. सो आई फील दुनिया में कुछ भी चीज करने के लिए ना अगर आपने वो सक्सेसफुली नहीं किया ना आप उसकी बुराई कर ही नहीं सकते हो सो अगर आप टॉपर नहीं हो ना आप एजुकेशन सिस्टम को गाली नहीं दे सकते बिकॉज आपसे तो क्रैक वैसे भी नहीं हुआ था सर राइट आंसर बहुत सिंपल है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. वो तो आपसे नहीं हुआ था वो आपने कुछ और उखाड़ा बहुत अच्छी बात है बट वो वाला सिस्टम अभी तक अनक्रैक्ड है सिस्टम की वजह से आप कुछ कर नहीं आप क्रैक नहीं कर पाए. This is then you can get and do something wow in life That's good, otherwise that's good, it's happening, so yeah. so yes that is what it is try it out give your best shot and देखी जाएगी यार that is all तुम्हारे हाथ में तो कर्मा ही है so do your karma and forget the rest to be Okay, honest. so now one last question from the panel, and you all can join in if you want to, and then we'll have maybe 2 or 3 questions from the audience. So you can take one mic from here if you want to, and then we can give it away. So we're talking about startups and funding and unicorns and billions and millions of dollars. But when you look around, you see so many local businesses. From a kachori wala to a sabzi wala to a rawat ki kachori wala Exactly, yeah. to just mithai ki dukan and so many local businesses happening around you. From taxi driver, even that, right? Tell me, how important do you think is it for a youngster to experience this basic understanding of how small businesses work? Because I believe that everything comes from these small businesses, right? It starts from there, those ideas and everything. क्योंकि ये लोग क्या है बहुत साल से प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे हुए हैं, राइट? किसी को कहाँ पर खाने की कमी है तो रेस्टोरेंट आ गया, कचौरी आ गया, अवन द बेकरी आ गई, राइट? सो एंड देन उसका किचन आ गया, एंड लाइकवाइज, राइट? बट देन how important is it for them to understand the importance of these? And second thing, how can they do it? How can they understand the model of these businesses? कि कचौरी वाला करोड़ रुपए कैसे बनाता है साल के, राइट? या एक समोसे वाला कितना पैसा कमाता है महीने का? क्या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ? सो या आई वॉन्ट यू टू आंसर. उस पे एक बैंगलोर का एक ढाबा आ रहा है रामेश्वरम, रामेश्वर कैफे. 7,500 केओटी कटते हैं उसके दिन के. उसका मंथली टर्नओवर है 6.5 करोड़ रुपए. क्या बेचता है वो? सांबर इडली. 120 से ऊपर का कुछ है ही नहीं उसके पास. ये छोड़िए तो बैंगलोर में. अब जयपुर की बात बताता हूँ मैं. मालवीय नगर आउटलेट हैज ए वन असिस्टेंट मैनेजर. उसकी खुद की समोसे की दुकान है. 70,000 रुपए पर डे का उसका गल्ला है, जितना मेरा आउटलेट का नहीं है. He has a 25 employees at that outlet. उसको भी आउटसोर्स कर रखा है. हाँ. सोच के देखिए तो स्मॉल बिजनेसेस. हमारे इंडियन स्टूडेंट, हमारे इंडियन पॉकेट जो साइज है ना, वो मैक्सिमम जो है वो है 300 रुपीस. 300 के अंदर अंदर जितना आता है ना, वो सबसे ज्यादा कमाता है. 6 घंटे के अंदर. So 300 rupees is our capping size. एक नॉर्मल इंडियन जो मिडिल क्लास फैमिली जो बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा है, वो 300 रुपये बाहर खाने पे खर्च करती है ऑन एन एवरेज. 300 रुपये क्या कॉस्ट फॉर 2, जिसके अंदर उनको ड्रिंक भी चाहिए, डेजर्ट भी चाहिए, मेन कोर्स भी चाहिए, और 20% डिस्काउंट भी चाहिए. उसके बाद कुछ और नहीं मिलेगा, ये भी चाहिए. और वो लोग आज बिजनेस करके एक ठेले वाला, ट्रस्ट मी,
एक कार्ट्स जो लगती है अपने ठेले जिनको बोलते हैं, वो एक नॉर्मल 3 स्टार रेस्टोरेंट से ज़्यादा कमाते हैं और वो हमसे अच्छे चैन की नींद सोते हैं। तो हमारी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी होती है जो स्कूल से डेवलप होने लग जाती है। जब हम ट्यूशन पे जाते हैं ना, तो ये निकालना कि ट्यूशन टीचर की कमाई कितनी हो रही है। इतने बच्चे आते हैं, इतनी फीस ले रहा है, इतने निकाल लो, इतने तो महीने के पकड़ ही लो, है ना। तो ये हैबिट इवेंचुअली डेवलप्स कि हम हर स्मॉल बिजनेस की कैलकुलेट करने लग जाते हैं। बट व्हाट वी डू नॉट नोटिस इज दैट इवेंचुअली वो उस नीच में ना दे आर सर्विंग द बेस्ट प्रोडक्ट। आप ये मान के चलिए, कचौरी वाला रावत की दुकान पे जाइए, वर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस है, फिर भी आप लाइन में खड़े रहेंगे, फिर भी आप देर तक रुकेंगे, फिर भी आप लेंगे। यहाँ नानपुरी बाईपास पे ना एक कचौरी की दुकान है, वही 80-90 हज़ार रुपये दिन का, लोग भीड़ लगा के खड़े रहते हैं। उस आदमी को इतनी फुर्सत नहीं है, वो कैलकुलेशन भी ना यूँ कहता है कि पैसे कितने, आप अपने हिसाब से काट के गले में से वापस पैसे ले जाओ, चेंज अपना खुद पैक करते हो, आप खुद पैसे देते हो उसको, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, आउट ऑफ द रीच है। पॉइंट इज उनका सिर्फ प्रोडक्ट इतना अमेजिंग होता है कि आप उसके लिए ना सारी भीड़ से लड़के भी वो प्रोडक्ट लेने आते हो। उसको 4 गाली दोगे कि भाई क्या है, कुछ नहीं मेंटेन कर सकता, बट यू विल स्टिल बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम हिम। आई थिंक दैट इज़ दी ब्यूटी ऑफ इट। हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम के साथ ना उसका सोल्यूशन बहुत स्पिक एंड स्पैन एकदम प्रॉपर रखते हैं कि टेस्ट ऐसा होगा कि आपको याद रह जाएगा। हाँ, बनियान पहन के, बट हाँ, वो केमिकल एक्स तो चाहिए ही। राइट, बट यू स्टिल नीड दैट टेस्ट, राइट। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वहाँ जाके आप कभी भी हॉस्पिटैलिटी की डिमांड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वो कहते हैं क्या चाहिए, लिटरली वो ऐसे ही बात करते हैं, अभी नहीं बाद में आना। हम ऐसा बोल दो तो हम पे केस हो जाते हैं, सिंपल। नहीं, बट आई थिंक आई टेल यू समथिंग डिफरेंट, ओके, एंड आई टेल यू कि I know. Give a big round of applause to the show, yaar. By the time we have a fireworks being done for us. So what has been the most rewarding part of your entrepreneurial It's journey? 150 shots, whatever. Oh God. So we have to. In terms Asha, of do money we? or from in terms of money. that is your job to decide. कौन सी ज़्यादा rewarding है? अभी तो ट्राई ऑडिबल, ये ऑडिबल, या। तो यहाँ पे 2 अच्छे एग्जांपल जो दिए ना, इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि बिल्ड फॉर मासेस और फॉर द प्रीमियम। अगर आपने मासेस के लिए कोई चीज़ बना दी है तो पीपल विल नॉट गोइंग टू आस्क यू यार ये एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा नहीं है, ये वो। मतलब जियो ने जब सबको इंटरनेट दिया तो जियो से लोगों ने जब फ्री में दिया तो इतना कंप्लेन नहीं किया, सबने ले लिया क्योंकि मासेस के लिए था। कचौरी वाले से जो हम बात कर रहे हैं, मतलब पर डे बहुत, मतलब इतना अच्छा रेवेन्यू करता है, तो उनसे कोई नहीं पूछता एक्सपीरियंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, बिकॉज पीपल लव इट, और वो मासेस के लिए है वो। या दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है, एक तो मासेस के लिए बन सकता है या फिर एक प्रीमियम के लिए बन सकता है, जहाँ पे एप्पल के बाहर लोग 1 दिन से खड़े हैं, एप्पल स्टोर के बाहर, जहाँ पे 2 लाख रुपए देने को रेडी है लेकिन फिर भी लाइन लगा के खड़े हैं, बिकॉज उनको एक मोबाइल फोन जो लेटेस्ट आया वो खरीदना है, दे वांट द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो आइदर बिल्ड फॉर मासेस और बिल्ड फॉर प्रीमियम, ये मुझे लगता है कि इंडियन इकोसिस्टम में काफी फिट बैठता है। नहीं, आई थिंक देर इज अ बिगर क्वेश्चन, एंड यू नो माई प्रॉब्लम इज दैट जितने भी छोटे SMEs हैं, दे स्टैग्नेट आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज उनके पास ना एक एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं है, और जो वो कर रहे थे, सो फ्यूचर विल नॉट बिलोंग टू दीज गाइज। एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, यू मे सेलिब्रेट वॉट एवर टुडे, बट बिलीव मी ऑल दीज छोटे छोटे SMEs विल डाई, and the time has come where we will lose these people. That has started happening in global economies, जहाँ पर ये छोटे players eliminate होते जा रहे हैं, right? हाँ, so big chains will come. आज today, you know, if I were to go and say grocery कहाँ से खरीद रहे हो, you will invariably say DMart चलते हैं, right? You would not want to go to that kirana store that you used to buy say 10 years back, and those stores have started shutting down. You know, the mobile phones, जो छोटे छोटे मोबाइल की दुकानें वो नहीं है आज। But do you also think that that is a lack of innovation from these guys? Precisely, so that's what I'm saying कि ये जो SME वाले जो you know लोग हैं, उनको ये actually समझना पड़ेगा कि there is this whole world of scalability, there's a whole world of innovation, there's a whole world of competition. आप यहाँ तक आ गए because आपके पास एक great product था,
बट वो जिंदगी भर सरवाइव नहीं करेगा, ये आप उसके लिए रेडी रहो. True. बिकॉज सी unless you innovate, unless you change. Precisely. So I represent CII, ASSOCHAM, which are absolute industry bodies. और मैं लिटरली बताता हूँ, ऐसे फोरम में जब वहाँ पे SMEs बैठे होते हैं ना, वहाँ पे से एटलीस्ट एक जना खड़ा होकर बोलता है, सर मेरी ये वाली दुकान है बंद होने के कगार पे खड़ी है बिकॉज ये वाला ऑनलाइन स्टार्टअप आ गया है. राइट और एक क्लासिक प्रॉब्लम होती है. एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज अ रियलिटी टुडे. आई कैन टेल यू, जो ये अपना मालवीय नगर का डीमार्ट खुला, कम से कम 5 ग्रोसरी स्टोर उसके पास के बंद हो गए. राइट एंड आई हैव सीन देम कमिंग एंड क्राइंग इन माय हाउस बिकॉज दे सेड सर ये नहीं चल रहा बिकॉज डीमार्ट की जैसी प्राइसिंग हम नहीं दे सकते. Right, so you're losing that business also, and if at all you belong to a community like that, if you see कि आपकी जिंदगी में ऐसे कोई businesses चल रहे हैं, तो please उसको innovate करो, उसकी scalability सोचो, उसके अंदर technology सोचो, उसकी growth trajectory सोचो. It's not going to be so easy. I think if your dad owns a shop, a kirana store or whatever business, कपड़े की दुकान है या कुछ भी दुकान है, तो first hand experience लेके, like sit on Sunday, go on the shop and sit and see how it works, and then maybe use the skills that you see on internet or in shows like Thinkers Valley. Go ahead and apply them there and learn about the business and take it further rather than being ashamed कि यार मेरे को गल्ले पे नहीं बैठना, मेरे को दुकान पे नहीं बैठना. It is yeah, I mean it is not a matter of shame, it is a matter of pride that when you are at this age, in this age, learning about, in this day and age, learning about entrepreneurship, your parents did it back then. So those are the OG entrepreneurs for you guys. So I mean you should celebrate it at home and learn about it rather than running away from it. That's my belief. One more thing I want to add. जयपुर से जितने भी लोग हैं और जो पुराने लोग हैं, अभी I'm not talking about 8 to 12 standard. Someone listen that name, किरण कैफे. बिल्कुल बिल्कुल. किरण कैफे का नाम सुना होगा आप लोगों ने. बिल्कुल. तो वो किरण कैफे में जो किरण है वो मेरे पापा के मामा जी हैं. Okay. माय दादी वॉज द थर्ड चाइल्ड उनकी. वो लोग लास्ट तक सरवाइव ऑलमोस्ट 40 इयर्स उन लोगों ने अपना कैफे चलाया. मैंने बहुत खाना खाया बचपन में वहाँ पर. जयपुर का फर्स्ट कैफे था वो. आगे क्यों सरवाइव नहीं कर पाए? बिकॉज ऑफ सागर रत्ना आ गया, कई लोग आ गए और वो अपना ही चलाना चाहते थे. हम तो ऐसे ही चलाएंगे. जहाँ जिद होती है ना, वहाँ प्रोग्रेस तो हो ही नहीं पाती है कभी. और जहाँ जिद होती है वहाँ प्रोग्रेस भी हो सकती है, बट दी अदर काइंड ऑफ जिद. सो सी हर चीज के दोनों पहलू होते हैं. आप कौन सा देखना चाहोगे? Absolutely fantastic. I think that is a fantastic conversation. Because of lack of time, we cannot extend it. I would love to ask you more questions, but here we have some students, and by a show of hands, you can let me know if you want to ask a question. There we have 2 kids there, right at the back, and we have one there. So we'll start with the one who raised his hand first. Yes, Lakshay, right? Yes, sir. Yes, Lakshay. So, good evening, sir. Sir, I would like to ask Paresh, sir. Sir, what has been the most rewarding part of your entrepreneurial journey? Oh God. अच्छा, in terms of money or not in terms of money? Well, that is your job to decide. कौन सी ज़्यादा rewarding थी? अभी तो पैसे पे ज्ञान दे रहे थे आप. अब बताओ. So मतलब मैं मेरी नॉन पैसे वाली रिवॉर्ड बताता हूँ. So I mentor children, right? I mentor youngsters. So बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं. एक स्टोरी है, this guy is called सागर पारीक, okay? And I know his name because now it has registered so well in my life. But मैं ऐसे ना एक बीकानेर में एक कॉलेज में गया था, ऐसे ज्ञान दे रहा था कि ऐसा करो लाइफ में ये हो जाएगा, तुम स्टार्टअप कर सकते हो, whatever. And he listened to my talk sensibly. और फिर 6 महीने बाद उसका फोन आता है, वो मुझे फोन करके बोलता है, सर थैंक यू. I said, I don't know you. I have no idea who are you. He said, आप ना हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे आए थे, आपने ऐसा ऐसा बोला था, and I followed your advice, and this is what has happened to me. And believe me, वो जो, I mean, I don't want to tell you a full story, what happened to him, whatever, but he was publishing a book, and that book is in the Harvard Library. और उस Harvard Library के book के first cover page पे he wanted to write thank you Mr. Paresh Gupta, और इसलिए उसने मुझे फोन करके पूछा था कि सर can I write your name?
एंड दैट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग दैट कैन हैपन टू यू कि आपका नाम हार्वर्ड लाइब्रेरी में लाइक एन ऑथर नहीं है, लाइक एन इंस्पिरेशन लिखा है बाय एन अदर ऑथर, एंड उसने 3 बुक्स पब्लिश करी है इस समय पर. और बिलीव मी, इतने सारे थैंक यूज मिलते हैं ना जब आप रात को सोते हो और आपके पास एक थैंक यू आया होता है. एक बच्चा है जो मुझे यूएस से फोन करके बोलता है, सर टुडे आई जस्ट रिमेंबर्ड वन ऑफ योर सेंटेंसेस एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंटेंस आई हैव गॉट अ $1 million डील. एंड दैट $1 million का क्रेडिट उसने मुझे दे दिया. यार मैंने क्या किया उसकी लाइफ में, केवल थोड़े से वर्ड्स, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी हेल्प, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज मोस्ट रिवॉर्डिंग. ट्रस्ट मी, जो जितने टीचर्स यहाँ बैठे हैं ना, इनफैक्ट इररिस्पेक्टिव तुम जितना जाके उनका मजाक उड़ाते हो, और सब उड़ाते हैं, हमको पता है, बट बिलीव मी, जब तुम उनको थैंक यू बोलोगे ना, और जब तुम स्कूल छोड़कर जाओगे और उनको मिस करोगे, that is the most rewarding thing for all of these teachers. Give a big round to Huge every round of single applause for teacher, all the teachers. because teacher बनना जिंदगी का सबसे difficult काम होता है, और उनको पैसे भी कोई नहीं देता आज के जमाने में. मतलब that's a bigger problem. Teaching profession is not a highly paid profession. Yeah. I agree. Unless you become Bhuvnesh. So ऐसे teachers को काफी पैसा मिलता है. हाँ, come online. Come online. So all teachers come I online. Start earning. I agree. I think But- I think Indian education system really needs to adopt a policy, but as a whole, to pay the teachers of this country more, and only then can this country reach the heights that we imagine it will. Because without teaching, education cannot improve, and without education, a country cannot improve. I second that supremely. So I think this is very rewarding. हर दिन थैंक यू आता है. मेरी जिंदगी दिन खत्म नहीं होता जब तक एक थैंक यू ना मिल जाए. Thank you, sir. थैंक यू. Okay, we have the next question. Thank you you, for this Lakshay. Next question from this side, right? Somebody raise their hand from this side. माइक को दौड़ाना. Yeah, you got to be fast. So my question to Viral sir is, have you implemented any advice or suggestions given by the sharks? Yeah, all of them actually. See, the session all over is around 1 hour 45 minutes. So you don't have all the insights what the advice they're giving us. कुछ तो अभी भी touch में है. Like Vinita is still advising us on certain things and is a good mentor to us. And yeah, definitely because मेरा ये मानना है कि जब आप किसी से mentorship ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसके स्टेज तक पहुंचने तक तो आप उससे एडवाइस सारी inevitably भी ले ही सकते हो कि whatever he is saying or she is saying is good advice for you. So we have implemented major changes from their end. Okay, next question is from here. Yes, this boy. There's a mic there. And then you can take the mic that side for the next question. Sir, I have a question from Mayank sir. That is a big fear in our parents that we have to start business. So the parents in government job have a fear that why are you starting business? Go study and make jobs. हम कैसे श्योर है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? That's also a risk. दैट्स ऑल्सो अ रिस्क. Yes sir. और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा. मुझसे बेटर अब परेश सर बताएंगे बिकॉज ऑफ उनके पास आंसर है इस चीज़ का. नहीं, सो आई विल टेल यू समथिंग वेरी फनी. ओके, मैं ना टॉपर हूँ. मेरे पूरे खानदान में सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और सारे सिविल सर्वेंट्स हैं एंड विथ हाई पोजीशंस. और मैंने मतलब सीबीएसई बोर्ड टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप किया. मेरे डैड ने मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे ना सिविल सर्विस का फॉर्म ला के दिया और उन्होंने बोला बेटा ये फॉर्म भर दो. और मैंने बिना बताए चुपके से ना फॉर्म फाड़ के फेंक दिया. एंड बिलीव मी, मेरे डैड बहुत नाराज हुए. उनको पता था हमारा बेटा एग्जाम देगा तो पास हो जाएगा. मेरे को भी पता था मैं एग्जाम दूंगा तो पास हो जाऊंगा, राइट, बिकॉज आई वॉज अ टॉपर ऑलवेज. एंड आई डेलिबरेटली डिड नॉट डू इट. नाउ it's a question to fight with your parents, and it's not about fight but it's about fighting for yourself. तुम्हें चूज करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो. It is not about कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे क्या चाहते हैं, right? You have to start thinking. I negotiated with them. मेरे डैड को मैंने बोला देखो मैं तो ऐसे जीना चाहता हूँ, मेरे को तो आपकी जैसी जिंदगी नहीं जीनी, राइट? अच्छा, एक चीज और बड़ी प्रॉब्लम है कि जिंदगी में ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर होने में और बड़ी प्रॉब्लम्स होती है. सो यू नो, बाहर से बड़ा अच्छा दिखता है बट घर में खाने के पैसे नहीं होते. So that's a real honest situation that I've seen in my house. I told my dad, यार आपकी सैलरी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं होते यार, and मेरे को आपकी जैसी अथॉरिटी नहीं, बोले लाल बत्ती गाड़ी नहीं पसंद. I'm a very down to earth person. मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा सकता हूँ, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता.
I went and told my dad was not convinced. Believe me. मैंने 12-13 साल जॉब करी. I worked across the globe, World Bank, PwC, HSBC, CIBC London, Sutherland, US. मैंने सब जगह काम कर लिया. मेरे डैड आए, उन्होंने देखा बच्चा बहुत अच्छा कमा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. He was still not happy. मैं वापस इंडिया आया, ठीक है, और इंडिया आने के बाद I was appointed as a brand ambassador for the government. And there was a call from the CM office. मैं घर पे हूँ, मेरे घर पे फोन आता है CM ऑफिस से, इस टाइम पे आ जाओ. मैंने कहा मैं बिजी हूँ, मैं आ नहीं सकता, कल मिलेंगे. मेरे डैड ने बोला तुम CM ऑफिस से ऐसे बात करते हो? मैंने कहा हाँ, इसमें क्या बात है, मेरे पास थोड़ी टाइम है, उनको मेरे से काम है, मेरे को थोड़ी है. एंड दैट टाइम माई डैड रियलाइज दैट कोई एक सिविल सर्वेंट ऐसे बात ही नहीं कर सकता कभी CM ऑफिस से, राइट. एंड दैट टाइम हिज रिस्पेक्ट रोज फॉर मी फॉर वॉट आई हैव डन फॉर 30 years of my life. So it might take you 30-40 years of your life to reach what you want to do. And तब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत पसंद करने वाले हैं. तो इसकी चिंता मत करो. Follow your heart, be what you want to be. और कभी कभी लड़ाई करना अच्छा होता है. So अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा यार, you have to be firm on your choices. नहीं तो तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि यार मैंने ये करा, ये मेरे से हुआ नहीं. And as Mayank said, गवर्नमेंट जॉब्स इतनी आसानी से मिलती नहीं है. मैं इसके बारे में मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, बट हाँ, मैं MBIT गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एंड आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन अर्ली एज. तो मुझ पे ये सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि आपको जो जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने आपको रेस किया है उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि समाज क्या बोलेगा कि बिन माँ बाप के बच्चे को ऐसे कर दिया. मैंने सोचा कि मैं चॉकलेट रूम खोलूँगा. तो सबसे पहले हमारे रिलेटिव्स ने मुझसे बोला अब तो इतना कुछ करके हलवाई की दुकान खोलेगा. एंड दैट हलवाई की दुकान इज अ राजस्थान फर्स्ट बेकरी विच इज नेशनल. I also think that you can tell your parents and ask your parents to let them give you a chance to do it, and maybe if you fail in it, then maybe take different routes and then find a way to do it again. I will just add one more advice to you. Make them meet somebody like Dipen sir. And that's very important. If not him, come to me, come to any of us. बिकॉज शायद तुम उन्हें उतने अच्छे से कन्विंस ना कर पाओ, बट हम लोग कर सकते हैं. हमें बिकॉज क्या होगा ना, देखो जो वर्ल्ड है ना इस समय पे, तुम्हारे पेरेंट्स को लिटरली पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है. 90% टाइम्स दे आर अनअवेयर. उनकी जिंदगी अभी तक 20 साल पहले ही अटकी पड़ी है. सो दे आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट द फ्यूचर इज गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड पीपल लाइक अस कैन कन्विंस देम बिकॉज वी आर देयर हु कैन एक्चुअली टेल देम यार देखो रियलिटी ये है, आप गूगल करके देखोगे आपको पता चलेगा भाई हो ही नहीं रहा. Right, so this is what it is. So reach out to counselors, reach out to mentors, reach out to your teachers, take that help from elders. They will be there to support you. Okay, sir. Thank you, So sir. round of applause. Okay, so one thing, very important thing. If you think we are having fun, please be a little loud and say yes. So do you want me to give a chance to the audience to ask 2 last questions? Or do you want me to end the show? because there are students from 8th through 12th standard and we are above the limit. So I think we are going to end the show here unless somebody really wants to ask a question. Okay, so this is going to be the last question. Good evening, sir. Okay, yes. So the last question of the night and then we pack it up. Thank you for the amazing session. I'm an ex-student from this school and I have been passed out since 2 years. And I have started my own startup which is about chocolates and jar cakes. Super. What's your name? Sir, Samyak Jain. Okay, sir. I also took an I cannot advice see from you from here. What Sorry, is sir. your brand name? Sir, House of Chocolates. Okay. HOC. I have started in the last 2 months and it has got above 60 customers right now, from which we regularly take orders and sell. And it has been a good experience. And I also asked Dipen sir when I passed 12th, what should I do? And he gave me the advice to try something like this, startups Okay. and no more. I don't remember. See, but you are inspiration for others. well. So I would like to thank you and I would ask for your advice on how to scale up. Because now I feel stuck at an self-employment stage where I am the one working and I want to learn how to employ people and get a better team. You asking with me? All of them, all of you. ओके, सो आई थिंक जो स्टार्टअप होता है ना उसकी एक क्लासिक जर्नी होती है और हमेशा आपको ये सोचना है ना कि आप फ्री कैसे होगे.
हमेशा ग्रोथ का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आपके पास फ्री टाइम कहां से आएगा। क्या होगा, हमेशा तुम्हें लगेगा मैं ये काम बेस्ट कर सकता हूं, भाई मेरे को बेकिंग आती है तो मैं ही बेस्ट करूंगा, बट देन यू ऑलवेज हैव टू फाइंड समबडी हु कैन रिप्लेस यू। मैं बिलीव करता हूं, मैं जैसे यू नो व्हेन आई वर्क ऑन माय बिजनेस आई लुक एट वन थिंग, मैं एक काम कर रहा था, मुझे अपने आप को हटाने के लिए उस काम से 3 जने हायर करने पड़ते, तब भी वो 100% एफिशिएंसी से नहीं कर पाते। तो आपको पहले तो वो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, हाँ सर, तो वो अभी पैसे start नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें फ्री में ढूंढना पड़ता है लोगों को। वो फ्री में ढूंढने के लिए तुम्हें इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट लीडिंग बाय एग्जांपल। इट्स अ वेरी टफ जॉब। मतलब जो स्टार्टअप की फर्स्ट ईयर की जर्नी होती है ना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और तुम अगर वो कर पा रहे हो तो तुम्हारे को वैसी कुडोस, मतलब सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू गाइस हु आर एक्चुअली डूइंग दिस यू नो जर्नी ऑफ फर्स्ट 1 ईयर। 1 साल सर्वाइव करना, फिर 3rd ईयर में सर्वाइव करना, और उसके बाद ग्रो करना, यही 3 बड़े स्टार्टअप चैलेंजेस हम मानते हैं। सो जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपको ढूंढना है इंटर्न्स लो। इतने बड़े स्कूल में बैठे हो, यहाँ के सारे बच्चों ने बोला मुझे खाना बनाना पसंद है, ढूंढो, लेकर आओ और उनको अपॉर्चुनिटी दो। क्रिएट दैट डिजायर एंड विश फॉर देम कि वो सीखने को मिलेगा। क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ। बिलीव मी, यू नो आई रन मल्टीपल बिजनेसेस टुडे, एंड मेरे फर्स्ट बिजनेसेस में हमेशा से ट्राई करता हूँ इंटर्न्स के साथ शुरू करेंगे। पैसे भी नहीं देता, और उनको पैसे ना देने के बावजूद भी दे वांट टू वर्क विथ मी बिकॉज द लर्निंग इज ग्रेट। सो क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी। उनको बोलो फ्रेंड के जैसे ट्रीट करो, को पार्टनर्स बनाओ, गिव स्टेक टू पीपल इफ नथिंग एल्स। से यार यू कम इन बोर्ड, आई विल गिव यू 2% स्टेक, आई विल गिव यू 5% स्टेक इन द बिजनेस, आई विल गिव यू रेवेन्यू शेयर। दैट्स अनदर स्ट्रैटेजी। अगर फिक्स्ड पैसे नहीं है देने के लिए, शेयर तो है भाई। तुम 15% बिजनेस लाओगे, 15% तुम्हारा, राइट? तो बिजनेस लाने के लिए रेवेन्यू बेस्ड मार्जिन या वेरिएबल कॉस्ट जिसको बोलते हैं, उस पे कन्वर्ट करो सारी चीजों को, और धीरे धीरे जब तुम ग्रो करोगे तो फिर वापस से वेरिएबल को फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। सो मतलब हम जब फाइनेंस सिखाते हैं ना, आई एम अ फाइनेंस टीचर, सॉरी बट थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं, बट हम शुरू में यू नो फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल में कन्वर्ट करना सिखाते हैं, फिर वेरिएबल को फिक्स में कन्वर्ट करना सिखाते हैं, एंड देन उसको एलिमिनेट करना सिखाते हैं, यू नो। सो दैट इज द क्लासिक जर्नी ऑफ फाइनेंस दैट यू नीड टू लर्न। तो एक तो फाइनेंस वाला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि तुम्हें थोड़ा इंस्पिरेशनल और वोकल होना पड़ेगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू स्टूड अप एंड सेड मेरे को लास्ट क्वेश्चन मेरे को पूछना है, या आई वांट टू डू दिस बिकॉज एवरीबॉडी हियर शुड नो दैट यू एग्जिस्ट, राइट? और यहां पर जितनी नेटवर्क करके जा सकते हो, स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल। खूब सारे लोगों से मिलोगे, तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, तुम्हारी स्केल अप जर्नी बेटर हो जाएगी। तो तुम्हें बहुत सारे लोग चाहिए इस टाइम पे। तुम्हारा प्रोसेस ऑफ नेटवर्किंग शुड बी वेरी हाई, एंड बिलीव मी ऑल ऑफ यू गाइज, इट इज वेरी गुड टू टॉक टू अस this way, but it is even better to talk to us actually like friends, in person मिलो। तो इन पर्सन कार्ड एक्सचेंज करो, लोगों से जाके बात करो, लोगों से रिसोर्स लो, हो सकता है तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिल जाए। तो गेट दोज अपॉर्चुनिटीज, दैट्स नंबर 2। एंड नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट एंड थोड़ा सा खर्चा करना। प्लीज एंश्योर लीगैलिटीज, प्लीज एंश्योर अग्रीमेंट्स, प्लीज एंश्योर ईमेल्स, एंड प्लीज एंश्योर क्लैरिटी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बाद में जाकर के ये इतना बड़ा तूफान खड़ा करेगा तुम्हारे लिए कि तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि मैंने पहले लिख के क्यों नहीं रखा था। आई थिंक दीज आर 3 स्टेप्स फ्रॉम माय साइड।